Hello students, welcome you all to our second session of our chapter number 12, that is electricity. Students, in the previous session, that is in the first part, we discussed regarding the definition of electric current, its SI unit, okay, and then we discussed regarding electric potential and potential difference and their SI unit. ओके इलेक्ट्रिक करंट का हमने डेफिनेशन देखा था, उसका फॉर्मूला देखा था. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक करंट? I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी. ओके, चार्ज अपॉन टाइम. देन पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला देखा था, V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, दैट इज वर्क डन अपॉन चार्ज. What is the SI unit of electric current? Ampere. And what is the SI unit of potential difference? Volt. Okay students, and then we saw regarding the circuit diagram and various symbols of the components present in a circuit diagram. Okay, वो symbol हमने जो देखा था table 12.1 of our textbook. Okay students, now let us continue with another topics of this chapter, and the most important topic of this chapter, that is Ohm's law. Okay students, so let's start our part. Students, Ohm's law was proposed by a German scientist named George Simon Ohm. George Simon Ohm was a German physicist and mathematician. Okay, he was also a school teacher. वो physicist mathematician के साथ साथ he was also a school teacher. Okay, and he has done many research in his field. Okay, he was the scientist who discovered this law, who created this law, and hence its law is known as Ohm's law. Now, what is Ohm's law? What did he found? Scientist Ohm, George Simon Ohm, found that there is a direct proportionality between the potential difference applied across a conductor and the resultant electric current. What do you mean by this? Let us understand, students. Scientist Ohm, George Simon Ohm, he found that there is a direct proportionality between what? Between the potential difference and the current. Potential difference is also known as voltage. मतलब voltage और current जो है directly proportional है. Current is directly proportional to voltage, and this relationship between the current and the voltage is known as Ohm's law. But before understanding Ohm's law, we should perform an experiment to understand this Ohm's law. एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, उसके ऑब्जर्वेशन टेबल देखेंगे, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड दिस ओम्स लॉ. ओके, दिस एक्सपेरिमेंट इज एन एक्टिविटी 12.1 of our NCERT textbook. Okay, let us see that activity. Yes, what is our topic now? We have to verify Ohm's law. To verify Ohm's law, or to find the relationship between potential difference and current, voltage और current के बीच का relationship. For this, we need an electric circuit. Okay, and for that electric circuit, we need some components. So what do we need? We need a nichrome wire of length 0.5 meter. 0.5 meter मतलब half meter. Half meter का एक nichrome wire चाहिए. Now what is nichrome? Nichrome is actually an alloy. It is an alloy made up of what? Which metals? Nickel, chromium, manganese and iron. Nickel, chromium, manganese and iron. These four metals are homogeneously mixed to form an alloy called nichrome, और उस nichrome से wires बनते हैं. Okay, so we are taking 0.5 meter nichrome wire, then we take an ammeter to measure the current, a voltmeter to measure potential difference, that is voltage, and 4 cells of 1.5 volt each. हम 4 सेल्स ले रहे हैं. आपको सेल पता है ना, जो घड़ी में लगाते हैं, इन सब में लगाते हैं एक एक करके सेल, बैटरीज जो होती है. ओके, तो एक एक सेल हम ले रहे हैं, 4 सेल ले रहे हैं, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच सेल इज 1.5 वोल्ट. हर एक सेल कितने वोल्टेज का है? 1.5 वोल्ट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी इन दिस सर्किट that with the help of nichrome wire, all the apparatus are joined. Okay, you can see that the voltage is in parallel with the resistance. We all know that voltage is connected parallel in the circuit, and ammeter is connected in series. There is a key which is closed. Closed key represents that current is flowing through the circuit. And what we will do in this experiment, we will one by one increase the number of cells. पहले हम लोग क्या करेंगे? एक सेल लगाएंगे. By applying one cell, we will measure the voltage and current. हम एक सेल लगाएंगे और उसके लिए वोल्टेज और करंट मेजर करेंगे. फिर 2 सेल लगाएंगे, एक और सेल बढ़ा देंगे,
2 सेल लगाएंगे, उसके लिए वोल्टेज और करंट मेजर करेंगे. देन वी विल अप्लाई 3 सेल्स एंड देन वी विल मेजर वोल्टेज एंड करंट. एंड देन वी विल अप्लाई 4 सेल्स, अटैच 4 सेल्स एंड देन वी विल मेजर वोल्टेज एंड करंट. मतलब एक एक सेल इंक्रीज करेंगे और हर स्टेप में वोल्टेज और करंट मेजर करेंगे और फिर देखते हैं क्या आता है रिजल्ट. ओके स्टूडेंट्स, so let us see the observation table. Okay, this is the observation table. Okay, we have serial number 1 2 3 4. In first serial number we are using 1 number cell. Okay, फिर 2 सेल लेंगे, फिर 3 सेल लेंगे, फिर 4 सेल लेंगे. ओके, तो लेट अस कंसिडर द फर्स्ट रो. हम पहला रो की बात करते हैं. ओके, व्हेन वी हैव यूज्ड 1 सेल, जब सर्किट में हमने एक सेल लगाया, तो लेट अस सपोज कि हम लोग का जब एक सेल लगाया तो वोल्टेज कितना मान लेते हैं 1.5 वोल्ट. वोल्टेज कितना मान लेते हैं 1.5 वोल्ट और करंट कितना मान लेते हैं 0.1 एम्पियर. ओके, सपोज लेट अस टेक दैट कि व्हेन वी आर अप्लाइंग 1 सेल इन द सर्किट, तो हमने वोल्ट मीटर और एममीटर दोनों में कितना कितना रीडिंग देखा. वोल्ट मीटर में देखा 1.5 वोल्ट और एममीटर में देखा 0.1 एम्पियर. ओके, तो वी गॉट V इक्वल टू 1.5 वोल्ट and current I equal to 0.1 ampere. Okay, now in the last column what we are measuring, we are measuring the ratio of voltage and current. V और I को डिवाइड करने का है, V और I का रेशियो. तो V और I का रेशियो क्या होगा, V कितना है फर्स्ट वाले रो में 1.5 और इसको डिवाइड करेंगे 0.1, तो पॉइंट कट जाएगा, तो क्या बचेगा 15/1, दैट इज हाउ मच 15. So students, in the first row when we applied one cell, the voltage was 1.5 volt, current कितना लिया हमने 0.1 एम्पियर. and when on dividing both V and I we got 15. the ratio which we got is 15. Okay, now let us increase the number of cells. now we are taking 2 cells. so in 2 cells let us take the reading of the voltmeter. तो voltmeter की रीडिंग कितनी आई 3 वोल्ट and the reading of ammeter is 0.2 एम्पियर. मतलब वोल्टेज कितना है 3 वोल्ट और करंट कितना है 0.2 एम्पियर. ऑन डिवाइडिंग V एंड I, V और I को डिवाइड करो लास्ट कॉलम के लिए, मतलब 3/0.2. सो 3/0.2 यू विल गेट 15. आप कैलकुलेशन करके देखना रफ बुक में 3/0.2, तो यू विल गेट 15. नाउ लेट अस गो फॉर 3 नंबर ऑफ सेल्स. Okay, when we are increasing the number of cells to 3, the voltage is 4.5 volt and current is 0.3 ampere. On dividing 4.5 by 0.3, you will get again 15. And when we use 4 cells, we get the potential difference, that is voltage as 6 volt, current as 0.4 ampere. On dividing V and I, matlab 6/0.4, we get the ratio 15. So you can see that कि एज वी आर इंक्रीजिंग द वोल्टेज द करंट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, है कि नहीं. हम जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज बढ़ेगा, और वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ रहा है. ओके, एंड बट यू कैन सी दैट द रेशियो ऑफ V and I इज कॉन्स्टेंट फॉर ऑल द वैल्यूज़. भले कुछ कितने भी वैल्यूज़ अलग अलग हो वोल्टेज और करंट की, लेकिन इनका जो रेशियो है V/I वो सब में सेम आया 15 15 15 15. दिस शोज दैट द रेशियो ऑफ V and I इज ऑलवेज कांस्टेंट. V/I इज ऑलवेज कांस्टेंट. ओके, और यही है ओम्स लॉ. ओम्स लॉ क्या बोलता है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज. मतलब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा. एंड दिस इज ओम्स लॉ. ओके, लेट अस सी द ऑब्जर्वेशन नाउ. स्टूडेंट्स, व्हेन वी प्लॉट दिस वैल्यूज इन द ग्राफ, जब हम इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे, okay, in the graph we are taking x axis as the what potential difference and y axis as the current. okay, x axis में हमने क्या लिया potential difference और y axis में क्या लिया current लिया. so it is I versus V ग्राफ, I versus V है ना, करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ है ये. ओके, तो जब पॉइंट प्लॉट करोगे 4 अलग अलग सेल्स के लिए, तो यू विल व्हेन ऑन जॉइनिंग द पॉइंट्स you will get the graph as a straight line. The graph is a straight line passing through the origin. Okay, ग्राफ क्या है, straight line passing through the origin. So वो जो ऑब्जर्वेशन टेबल हमने देखा ना अभी, उन ऑब्जर्वेशन टेबल में से हमने V और I की वैल्यूज़ प्लॉट किए. ओके, जब V आपका 1.5 वोल्ट है तो I कितना है 0.1. When the V is 3 volt, I is 0.2. When V is 4.5 volt, I is 0.3. and when V is 6 volt, I is 0.4.
ऑन प्लॉटिंग ऑल दिस 4 पॉइंट्स, जैसे हम 8th 9th में हम लोग नहीं कैसे पॉइंट्स प्लॉट करते थे, इस तरह से पॉइंट प्लॉट किया है, तो वी ऑन जॉइनिंग दिस पॉइंट वी आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन एंड दैट स्ट्रेट लाइन passes through the origin. So what is the observation? The observation is that when V increases, I also increases linearly. मतलब when voltage increases, current also increases. Okay, that is current is directly proportional to voltage. वो जो अल्फा जैसा सिंबल दिख रहा है ना, उसका मतलब वो प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब क्या है? प्रोपोर्शनल. एंड द रेशियो ऑफ V अपॉन I, V और I का जो रेशियो है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली सेम इन ऑल द कंडीशंस. कितना कितना आया हमारे जो ग्राफ में, कितना कितना है? 15 है, क्योंकि हमने ऑब्जर्वेशन टेबल में देखा था कि V अपॉन I का रेशियो कितना आया था? 15. ओके स्टूडेंट्स, so by performing that experiment, Ohm's law explains, Ohm's law was derived. Ohm's law explains what? It explains the relationship between three things: voltage, current and resistance. Voltage, current and resistance. It gives the relation between three things: voltage, current and resistance. Okay, now let us see what is Ohm's law. ये जो third point है, according to Ohm's law, this is a statement of Ohm's law. At constant temperature, means you are not changing the temperature. At constant temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end. मतलब जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, then the current will be directly proportional to the potential difference. Okay, that is current is proportional to the voltage. This is Ohm's law. This is the statement. This is the statement. Now let us कन्वर्ट दिस स्टेटमेंट इन द मैथमेटिकल फॉर्म. इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, तो उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? लेट अस सी हियर. यू कैन सी हियर दैट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या बोला गया? दैट वोल्टेज और करंट दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सो वी इज प्रोपोर्शनल टू आई. मैंने आपको बताया प्रोपोर्शनल, वो अल्फा वाला सिंबल जो है वो प्रोपोर्शनल है. ओके, एंड वेन एवर we remove that proportionality sign and we use an equality sign, इक्वल लगाना हो तो आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है. ओके, जब भी प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल साइन लेके आना हो तो यू हैव टू अप्लाई अ कांस्टेंट, एंड सो वी हैव मल्टीप्लाइड अ कांस्टेंट r here. So v equals to r into I. Okay, here what is r? r is the constant resistance of the conductor. ये जो वो ऑब्जर्वेशन टेबल में नहीं सब में 15 15 15 15 वो कांस्टेंट वैल्यू आई थी, वो क्या थी? वो रेजिस्टेंस था वो. ओके, क्योंकि वो क्या था? रेशियो था ना V अपॉन आई का, और V अपॉन आई कितना होता है? R होता है. क्योंकि ये जो फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया V इक्वल्स टू R इंटू आई, इसमें से I को नीचे भेज दो तो V अपॉन आई इक्वल टू कितना हो जाएगा? R. सो द रेशियो ऑफ V एंड I, दैट इज़ V अपॉन आई, इज इक्वल्स टू R, दैट इज़ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. ये कंडक्टर का क्या है? रेजिस्टेंस है. एक्चुअली व्हाट इज़ रेजिस्टेंस? ये इलेक्ट्रिक करंट को रोकता है. ओके, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को, चार्ज के फ्लो को थोड़ा रोकता है. दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. ओके, सो वंस अगेन स्टूडेंट्स, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल टू लगाया तो हमने R से मल्टीप्लाई किया. सो V इक्वल्स टू I इंटू R. दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. इसी में से अभी आपको अगर I की वैल्यू चाहिए तो R को नीचे भेज दो, तो V अपॉन R करोगे तो कितना आ जाएगा? I. करंट I इक्वल टू V अपॉन R. ओके, so current I is directly proportional to potential difference and current I is inversely proportional to resistance. करंट जो है पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रेजिस्टेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस डिस्कस रिगार्डिंग दिस आर रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, Students, we all know that an electron traveling through the wires and loads of an external circuit encounters resistance. Whenever electrons, that is charges, flow through the conductor, they encounter sometimes resistance. Actually, what is resistance? Resistance is the hindrance to the flow of charge. When the charge flows, there is some hindrance. उनके पाथ में कुछ रुकावट होती है. फ्लो ऑफ चार्ज के पाथ में कुछ रुकावट होती है, एंड दैट हिंड्रेंस इज नथिंग एल्स, इट इज़ द रेजिस्टेंस. ओके, जो पाथ, जब फ्लो ऑफ चार्ज फ्लो करता है तो उनको सामने से कुछ रुकावट आती है, दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस. ओके, एंड व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, OHM, ओम. और इसका सिंबल आप देख सकते हो ब्रैकेट में है, उसको हम बोलते हैं ओमेगा. व्हाट इज इट नोन एज? ओमेगा. मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ रेजिस्टेंस के बारे में थ्रू अनदर पिक. ओके स्टूडेंट्स,
you can see here that resistance is the property of a conductor to oppose the flow of charges through it, है ना. It is the property of a conductor to oppose the flow of charges के जो flow को oppose करता है, रुकावट करता है, that is resistance. Okay, the SI unit of resistance is ohm, 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 but it is denoted by the Greek letter omega. ये जो सिंबल आपको दिखाया हुआ है उल्टा यू जैसा, उसको ओमेगा बोलते हैं. जैसे अगर किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 5 ओम है तो 5 के बाजू में ये ओमेगा लगा देंगे. ओके, सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमको आर का फॉर्मूला क्या मिला, आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई. वी अपॉन आई की वैल्यू जो कांस्टेंट होती है ना वो टेबल में, दैट इज इक्वल टू आर रेजिस्टेंस. ओके, नाउ हाउ विल यू डिफाइन 1 ओम रेजिस्टेंस. 1 ओम रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन करेंगे, बट वी ऑल नो दैट द फॉर्मूला ऑफ आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई. तो आर 1 ओम कब होगा, जब वोल्टेज कितना होगा 1 वोल्ट और करंट कितना होगा 1 एम्पियर. व्हेन द वोल्टेज इज 1 वोल्ट एंड करंट इज 1 एम्पियर देन रेजिस्टेंस विल बी 1 ओम. सो लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ 1 ओम. इफ द पोटेंशियल डिफरेंस across the two ends of a conductor is 1 volt, if the potential difference is 1 volt, that is voltage is 1 volt and the current through it is 1 ampere and the current is 1 ampere, then the resistance of the conductor is 1 ohm. ओके, क्योंकि 1 ओम क्या है 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर. जब वोल्टेज 1 वोल्ट हो और करंट 1 एम्पियर हो तो 1 अपॉन 1 यानी आंसर कितना आएगा 1 ओम, है ना. 1 ओम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट पर एम्पियर. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज रिगार्डिंग रेजिस्टेंस. ओके स्टूडेंट्स, सो फार वी डिस्कस्ड रिगार्डिंग ओम्स लॉ. हमने ओम्स लॉ की एक्टिविटी देखा, उसका सर्किट डायग्राम, ऑब्जर्वेशन टेबल, ग्राफ एंड इट्स मैथमेटिकल डेरिवेशन देख लिया, V इक्वल्स टू आई आर and also we defined 1 ohm resistance. Okay, now let us discuss regarding the factors affecting resistance. Which are the factors which affect the resistance? Students, in all there are 4 factors affecting the resistance. The first is length of the conductor, second is area of cross section of the conductor, that is thickness of the conductor, then third is nature of the material of the conductor, and the fourth is temperature of the conductor. Means resistance depends on the length of the conductor, it depends on the area of cross section, it depends on the nature of the material, and it depends on the temperature of the conductor. These are the 4 factors on which the resistance depends. Okay, you should remember these 4 factors. Now, the factors on which the resistance depends, the factor on which the resistance of a conductor depends. Okay students. Now students, we have studied that resistance is proportional to the length of the conductor. Okay, resistance जो है 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है, उसमें से 2 चीज़ हम ले लेते हैं, एक लेंथ और एक एरिया. ओके, लेंथ एंड एरिया. तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. सो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. ओके, रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है. ओके, then it is also known that resistance is inversely proportional to area. Resistance is inversely proportional to area. So what is the meaning of the word inversely proportional? That resistance is proportional to 1 upon area. Inversely मतलब उल्टा 1 upon area. Okay, that is equation number 2. So students, once again let me explain what is equation 1 and equation 2. कि ये जो हमारा resistance है ना, जो भी हमने ओम्स लॉ में डिराइव किया, that resistance is directly proportional to length of the conductor. मतलब कंडक्टर का लेंथ बड़ा होगा, ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ऐसे. सो R is proportional to L, directly proportional to L. Equation number 1. But resistance is inversely proportional to area, that is R is proportional to 1 upon A. और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर एरिया बढ़ा ना कंडक्टर का तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. उल्टा रिलेशन है, दैट इज कॉल्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. ओके, सो आर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ कंबाइनिंग बोथ द इक्वेशंस, वी आर कंबाइनिंग बोथ द इक्वेशंस. तो व्हाट यू विल गेट, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए. न्यूमरेटर में एल आ गया, डिनोमिनेटर में ए आ गया. सो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए. नाउ जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल टू लगाते हैं तो हमको एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है. तो हमने यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट लगाया, रो. वो जो P जैसा दिख रहा है ना आपको, इट इज़ नॉट P, इट इज़ ऑल्सो इन ग्रीक अल्फ़ाबेट रो, RHO, रो. ओके, सो द रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन गया,
R equals to rho L by A. R equals to rho L by A. This is the formula for resistance. Okay students, so once again students, R is proportional to L, R is proportional to 1 upon A. So combining both this equation you will get R proportional to L upon A. प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल टू लगाया तो हमने कांस्टेंट रो मल्टीप्लाई किया. सो आर इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, एंड दिस कांस्टेंट रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल. इट इज़ नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल. आर होता है रेजिस्टेंस और रो होता है रेजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल. इट इज़ ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटीरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल. सो लेट अस डिस्कस रिगार्डिंग दिस. सपोज यहाँ से मुझे रो का फॉर्मूला बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? मैं ए को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा आर के पास और एल को नीचे भेज दूंगा. तो रो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आर इंटू ए अपॉन एल, आर इंटू ए अपॉन एल. सो लेट अस सी द फॉर्मूला फॉर रो, दैट इज रेजिस्टिविटी. सी हियर स्टूडेंट्स, इट इज़ रिटन दैट रो, पी जैसा लग रहा है ना, वो एक्चुअली रो है. इट इज़ अ कांस्टेंट नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल. ओके, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रो? आर इंटू ए अपॉन एल, resistance into area upon length of the conductor. Okay, now we all know that कि resistance R का यूनिट क्या होता है? ओम होता है. ओके, एरिया का यूनिट क्या होता है? स्क्वायर मीटर. और लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर. ओके, तो देखो सबके यूनिट लगा दिए यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी फाइंड करने के लिए. सो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इक्वल टू आर का यूनिट लगा दिया ओम, इंटू एरिया का यूनिट लगा दिया स्क्वायर मीटर, अपॉन लेंथ का यूनिट लगा दिया मीटर. तो ऊपर नीचे एक एक मीटर मीटर कट गया. ओके, सो क्या बच गया आपको? ऊपर बच गया एक ओम और एक मीटर. सो द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर. ओम मीटर सिंबल में लिख सकते हो ओमेगा और बाजू में एम, ओमेगा फॉर ओम एंड एम फॉर मीटर. सो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? ओम मीटर. एंड द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी इज आर इंटू ए अपॉन एल. ओके स्टूडेंट्स, now students, if you look at the table 12.2 on page number 207, you can see the resistivity of some of the substances at 20 degree Celsius temperature. Okay, कुछ substances का resistivity दिखाया हुआ है. तो you can see the table from the textbook also. Okay students, now what is this resistivity? Resistivity is a property, characteristic property of the material. Okay, generally the metals have the least resistivity. जो कंडक्टर्स होते हैं ना, मेटेलिक कंडक्टर्स, दे हैव द लीस्ट रेजिस्टिविटी, उनकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है. ओके, एंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द एलॉयज इज ऑल्सो वेरी लेस. मेटल्स की और एलॉयज की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है. बट द रेजिस्टिविटी ऑफ द इंसुलेटर्स, व्हाट डू मीन बाय इंसुलेटर्स? दोज हु आर पुअर कंडक्टर्स, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है, दोज आर कॉल्ड इंसुलेटर्स. द रेजिस्टिविटी ऑफ द इंसुलेटर्स इज वेरी हाई. It is very high. So let us take the example. If we take the example of some conductors like silver, copper, aluminum, tungsten, nickel, iron, chromium, mercury, manganese, these are all good metals. They are good conductors. और इनकी resistivity देखो कितनी कम है, 10 to the power minus 8 है ना. सबकी वैल्यूज 10 to the power minus 8 है. minus 8 मतलब बहुत कम वैल्यू. So the resistivity is least for the conductors. Okay, but if you see the resistivity of the alloys, it is also in the range of 10 to the power minus 6. हमने कौन कौन से एलॉय देखे? एक है कांस्टेंट 10. कांस्टेंट 10 जो है किसका एलॉय होता है? कॉपर और निकल का. देन मैंगनीन, मैंगनीन इज एन एलॉय ऑफ कॉपर, मैंगनीज एंड निकल. एंड निक्रोम, निक्रोम तो हमने ओम्स लॉ में नहीं, निक्रोम का वायर यूज़ किया था. इट इज़ द एलॉय ऑफ निकल, क्रोमियम, मैंगनीज एंड आयरन. सो दिस एलॉयज आर ऑल्सो हैविंग द रेजिस्टिविटी वैल्यू लेस. इनका 10 to the power minus 6 ओम मीटर के रेंज में. ओके, बट इफ़ यू सी एट द इंसुलेटर्स, दैट इज़ पुअर कंडक्टर्स लाइक ग्लास, रबर, एबोनाइट, डायमंड, पेपर. ओके, इनकी रेजिस्टिविटी अगर आप देखो तो 10 to the power 10 से लेकर 10 to the power 17 तक, 10 to the power 12 से लेकर 10 to the power 17 तक के रेंज में पॉजिटिव पावर से. मीन्स इनकी रेजिस्टिविटी एकदम हाई है. सो ड्यू टू दिस हाई रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिक करंट कैनॉट पास थ्रू दिस इंसुलेटर्स. क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी इतनी हाई है, इसके लिए इलेक्ट्रिक करंट इनमें से पास नहीं हो सकता. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड रिगार्डिंग दिस रेजिस्टिविटी. ओके, so students, by this we finish our today's session. Students, in these two sessions we discussed regarding electric current, potential difference, Ohm's law and resistivity.
Okay, these are the important topics which we have discussed so far. In the coming sessions, we will discuss some derivations regarding series and parallel connection of resistors and Joule's law. For that, I will have to come on the board. So I will be coming live in the next two videos. थर्ड वीडियो में चैप्टर के सारे डेरिवेशंस में कंप्लीट कर दूंगा एंड इन द फोर्थ वीडियो वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर. Okay, for those two videos I will be coming on the board. Okay students, till then go through these two videos because we have to learn all the formulas in these two videos. Okay, thank you students.